Good afternoon, everyone. Today, on behalf of EcoSavera, I, Sonu Sharma, feel elated to welcome you all to this very informative session on the theme climate change. As you all know, today's session is organized by EcoSavera, supported by Eco Chakra Abhiyan. EcoSavera is a national level NGO with its registered office in Faridabad. With its core team of 10 members and kind supporters like you all, EcoSavera works to make this planet cleaner and greener. We try to accomplish our aim through various means like waste management, various drives, projects, awareness sessions like this. From time to time, EcoSavera conducts awareness sessions with RWAs. We conduct regular dry waste pickup drives, awareness sessions in schools and colleges. Now, coming to Eco Chakra Abhiyan. In Eco Chakra Abhiyan symbol, there are 12 big and 12 small spokes, just like cycle. It signifies अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो व्हील ऑफ टाइम संभव है. वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति एक्शन की अर्जेंट जरूरत है. इनर सिंबल बताता है एजुकेट, एग्जीक्यूट एंड एम्पावर. आई रिपीट, एजुकेट, एग्जीक्यूट एंड एम्पावर. इको सवेरा, इको चक्रा एंड आई गेस हम सभी का ये मानना है कि समाज के सुधार के लिए कोई सिंगल व्यक्ति, कोई सिंगल सरकार या कोई सिंगल एनजीओ कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता. समाज के सुधार के लिए सरकार, एनजीओ, हमको सबको साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कुछ सुधार संभव है. So now, as I come to the topic of climate change, I would like to briefly explain what is climate change. Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. These shifts may be natural, but since 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to burning of fossil fuels, which produces heat-trapping gases. As per reports, we are losing around 1.2 trillion tons of ice. I repeat, 1.2 trillion tons of ice each year. Now, as we all know, हम बीते हुए कल पे ना तो जा सकते हैं, ना उसे बदला जा सकता है. लेकिन आज सावधानियां बरती जाएं और आज जागरूक हो जाएं, तो हम भविष्य को संभवतः ठीक कर सकते हैं और आगे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है. इसी कड़ी में आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, बता सकें कि क्यों क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक होना, सावधानियां बरतना जरूरी है. Now, I would like to introduce everyone to our speaker of the day, Mr. Pranay Kumar, an environmentalist by passion. Pranay sir did his MBA from Hult International Business School and Harvard University, Boston, USA. Pranay sir holds PG diploma in environmental law from National Law University. Sir has created and leading an environment sustainability solutions company, Vasudha Eco Friends. Sir has always been a constant pillar of support to EcoSavera in these environmental activities, sessions, and webinars. Now, I introduce Pooja Bahl ma'am. Pooja ma'am is the founder of EcoSavera. Pooja ma'am has been working in the field of waste management for the last 10 years. She did MSc Zoology and MPhil in Environmental Sciences. She was a postgraduate teacher for over 8 years. Now, she is a full time environmentalist working day and night to make this planet a cleaner and greener one. Over to you, ma'am. थैंक थैंक यू सोनू. वेलकम टू ऑल. मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ज्वाइन किया. हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे 65 लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है. ये बहुत एक खुशी की बात है मेरे लिए क्योंकि आज के टाइम में हर कोई सुधार चाहता है और हम भी इसी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे थोड़ा बहुत सागर में बूंद के बराबर काम करें, लेकिन हम कुछ करें जिससे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो गलत हो रहा है, उसको हम सुधार सकें. तो जैसे कि सोनू ने बताया क्लाइमेट चेंज क्या है, नेचर कैसे इस पे इम्पैक्ट हो रही है,
तो मैं पर्सनली जो एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं कहूंगी, आई एम द नेचर लवर। और मुझे प्रकृति सेवा का बहुत अंदर से एक जज्बा है कि मैं चाहती हूँ कि जितना जब तक लाइफ है मैं प्रकृति के लिए कुछ कर सकूं। और मैं, मेरा जो मोटो है वो यही रहता है, सर्व द नेचर। मैं कभी नहीं कहती सेव द मदर अर्थ, बिकॉज मदर अर्थ और मदर नेचर को सेव करने वाले हम कोई भी नहीं है। उनके अंदर इतनी पावर है कि वो सब अपना सेव हमें भी सेव करती हैं और अपने को भी कर लेती हैं। लेकिन हम सेवा कर सकते हैं उनकी, क्योंकि आज अगर लेडीज जो भी जुड़ी हुई हैं वुमेन हमारे साथ, तो वो इस पीड़ा को समझती होंगी कि जो मदर नेचर आज जिस दुख से या जिस जो उनके ऊपर बीत रही है, जो असहाय पीड़ा उनको हो रही है, वो हम लोग एज ए लेडी होने के नाते बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं जब स्कूल्स में अवेयरनेस करती हूँ तो बहुत छोटे शब्दों में बच्चों को समझाती हूँ, बहुत जिससे कि बच्चों को समझ में आता है कि जो प्रकृति है वो हमारी दादी माँ है, और जो मदर अर्थ है वो हमारी मदर है। क्योंकि मदर नेचर के 5 एलिमेंट्स है, सबको पता है, अपना एयर, वाटर, धरती, आकाश और अग्नि। तो उस वे में बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आज आप लोगों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं क्यों चाहती हूँ या हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो नेचर है उसको बहुत अच्छा बना रहे और आगे आने वाली जनरेशन उन नेचुरल रिसोर्सेस को सबको वो यूज कर पाए। तो इसी के उसमें आगे मैं अपना क्लाइमेट चेंज के बारे में, जैसे सोनू ने बताया, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक पॉजिटिव वर्ड है। और ये हम लोग ग्लोबल उस पे काफी कुछ इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। जो हमने सुना, जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा बचपन में कि दिन रात बनते हैं, डेज बन किस तरीके से ईयर से ईयर बनते हैं, तो उसी तरह जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ करती है, राउंड करती है, तो थोड़ा सा उसके अंदर टिल्टिंग आती है। तो ये जो पूरी टिल्टिंग होती है, इसको करने में 28,000 साल लगते हैं। इसमें से 14,000 साल जो होते हैं सन के एक साइड होते हैं, 14,000 साल दूसरी साइड होते हैं, जिसको यदि आप लोगों ने साइंस में या बचपन में पढ़ा होगा, एक आइस एज होती है और एक फायर एज होती है। हम आइस एज से आगे आ चुके हैं, 11,000 साल हमारे बीत चुके हैं, और 3 से 4 3,000 साल या 2,500 साल बाकी हैं हमारे फायर एज की तरफ आने के लिए। बट बट हो क्या रहा है कि ये जो 2,500 वाला समय आने में अभी कितना टाइम है, वो चीज बहुत जल्दी बहुत तेजी से आ रही है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होना चाहिए वो नेचुरल प्रोसीजर, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन इसको हम स्पीड को स्लो कर सकते हैं। क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। जो हम लोग किस तरीके से उसको इम्पेक्ट कर रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बेनाइजेशन बढ़ रहा है। जो वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ने के कारण जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हमारा डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ों की कमी हो रही है। और इसके अलावा जो है हमारा क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेचुरली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है। जो कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है, पावर जनरेशन, हमें डिमांड बढ़ रही है पावर जनरेशन की। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो गैसेज हैं वो रिलीज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं। यदि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। कार्बन रिलेटेड जितनी गैसेज हैं, SO2 है, सल्फर मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन मानी जाती है। क्योंकि उसका एक इकोसिस्टम एक बना हुआ है कि अब CO2 निकल रही है पेड़, तो O2 में से CO2 और O2 का आपस में एक्सचेंज होता रहता है। यदि प्लांट्स, हम किस लिए लगाते हैं प्लांट्स, की हमारी CO2 एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन डिफोरेस्टेशन के कारण वो पेड़ कटते जा रहे हैं, तो CO2 का लेवल जो है बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, कार्बन एमिशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अगर आप लोग कहेंगे कि इन गैसों से हमें क्या मतलब है, क्यों बढ़ रही है, कोई बात नहीं, नहीं। इससे क्या हो रहा है, ग्रीन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, सोनू ने सिंपल शब्दों में बताया था कि बर्फ पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कल की मैंने एक स्टडी में पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कार्बन का एमिशन था वो 2.5 ppm के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, और इसी तरह टेम्परेचर भी 1 डिग्री जो है हर साल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। और ये हम लोग देख रहे हैं, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता लग रहा है, हम फील कर रहे हैं वाली चीज की किस तरीके से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है,
ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, जो ये गैसेज है, ये सारी गैसेज जो कि नेचुरल प्रोसेस है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, सनलाइट हमारी अर्थ पे आती है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ओजोन लेयर वगैरह। लेकिन इन गैसेस के बढ़ने के कारण जो कार्बन एमिशन गैसेस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही वर्ड बोल रही हूँ, ये गैसेस सन पे जब पृथ्वी पर आती हैं तो वापस वो उस स्पीड से वापस नहीं जा पाती, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और ये ट्रैप हो जाती है नीचे। यही जो आपकी गैस, यही जो एनर्जी है, जो हीट है, ये हमारे को ग्लोबल वार्मिंग को, जो हमारे टेम्परेचर को जो है वो बढ़ा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉजेज हैं, ये रीजन मैंने बता दिया आपको। मेरा मानना यही है कि हम जो है, इको सवेरा जो है काम कर रहा है, इसमें से ये क्लाइमेट चेंज इज अ बिग चैप्टर। इसमें छोटे 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 बहुत सारी चीजें हैं, प्रणय थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस करेंगे। और हमारा मोटिव है कि हम प्रॉब्लम के साथ हम सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस रखें। इको सवेरा का मेन जो काम है, इसमें से हमने एक चैप्टर का एक पॉइंट हमने उठाया हुआ, दैट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, इन कार्बन एमिशन गैसेस को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फरीदाबाद में रहते हैं तो सबको पता है किस तरीके से कूड़े का मैनेजमेंट हो रहा है। इसका कोई बाईपास पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको आपको सारा कूड़ा दिखाई देता है, उसको जलाया जाता है। नवंबर के टाइम में अपन को स्मोक दिखाई, कितना जबरदस्त स्मोक होता है। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, इस पे काम कर रहा है इको सवेरा। और इको सवेरा टाइम टू टाइम इस तरीके से कंडक्ट करवाता रहेगा कि जिससे कि हम अपने वेस्ट को मैनेज कर सके। बाकी चीजों पर पॉइंट जो है प्रणय डालेंगे। ओवर टू प्रणय। प्रणय, आप अपना इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो भी आप बताना चाहते हैं, प्लीज आगे इसको लेके चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, एंड थैंक यू इको सवेरा, इको चक्र अभियान। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मंगलम मैम जो फाउंडर हैं इको चक्र अभियान की, शी इज़ एट वेरी यंग एज ऑफ 80 एंड शी हैज़ बीन अ फाउंडर ऑफ इको चक्र अभियान। और उनके कारण ही मैं एक एक्चुअली इको चक्र अभियान मैंने गठित करने का प्रयास किया है, बनाया है। और उसमें पूजा जी भी काफ़ी बड़ा रोल निभा रही हैं। और ये इको चक्र अभियान के अंदर जब ट्रस्ट बन चुका है तो पूजा जी ने पहल करके ये सेमिनार शुरू करवाया। अब इसमें एक तो जो मुझे पता नहीं है, जिसने इंट्रोडक्शन दिया था, जिन्होंने, प्लीज मुझे सर ना बोलें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और बड़ा हो गया हूँ, तो प्रणय ही ठीक रहेगा। और काफ़ी पॉइंट्स जो हैं इंट्रोडक्शन में भी और पूजा जी ने डिस्कस किए हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव रहेगा कि मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पिक कर करके उस पे एग्जाम्पल देकर उसको डिस्कस करें। ये एक तरफा लेक्चर नहीं है, इसलिए आप आराम से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे पास कितना समय है पूजा जी? अभी 12:19 हुआ है। हाँ, तो 20 मिनट का है सोनू, है ना? 20 मिनट का सर के पास समय है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, प्रणय क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? सबसे आप हाँ, पहले जो भी होगा क्वेश्चन आंसर टाइप करता जाएगा, सोनू पूछता जाएगा क्वेश्चन भी लास्ट में, ठीक ठीक ठीक। 12:45 के बाद तो या 12:50। एक तो इंट्रोडक्शन में अच्छा, मैं बाकी सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन मैंने लिंक शेयर किया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक क्लासमेट है यूएसए से इंजीनियरिंग का, वो अभी सोने वाला था फिर भी उसने ज्वाइन किया है और उसने मुझे लिखा है। और मेरे एक पार्टनर ट्रस्टी हैं पुथु, ही इज़ अ बिग नेम इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट इन हैदराबाद, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग sir, टू मी। sorry to interrupt you for a हाँ minute. Very sorry to interrupt you. हाँ May I request everyone, those who can and it is possible for them, may they please turn on their camera so that we all can see everyone. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। Okay, sir, you may please continue. सो एक तो सॉरी, मैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया मैं उनका नाम भूल गया। सोनू नाम है उसका, बच्चा हाँ, है छोटा हमारा, अच्छा अच्छा। अभी ग्रेजुएशन पास किया उसने, सीए कर रहा है, ये स्टार्ट किया इसने सीए अभी अच्छा, ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेट। तो हमारा कोर टीम का, हमारा सोशल मीडिया हैंडल सब यही करता है, ओके ग्रेट। क्योंकि क्या है कि लोग यूथ है। सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज को समझते हैं कि फाइनेंस से रिलेट नहीं किया जा सकता। ये अच्छा है कि सोनू सीए कर रहा है, तो वो मेरे साथ काम कर सकता है कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रॉफिटेबल भी है, राइट। तो उस पर भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, फॉसिल फ्यूल जो है वो कारण है क्लाइमेट चेंज का।
लेकिन वो अकेला कारण नहीं है फॉसिल फ्यूल। जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि 1/3 ऑफ द एमिशन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एमिशन इज प्रोड्यूस्ड बाय राइस फील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो चावल के खेत हैं उसमें सबसे ज्यादा मीथेन पैदा होता है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है, हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसके अंदर चावल को 1 या 2 फीट पानी में डुबो के रखा जाता है, जिससे मीथेन प्रोड्यूस होता है उगते समय। वो एक बहुत बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। मीथेन जैसा आप लोग सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से 4 से 8 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। दूसरा है जो सबसे बड़ा कारण है, और पिछले 20-30 साल से हम लोगों ने देखा है कि कंजम्पशन भी उसकी बढ़ गई है, जो भारत में है वो है कैटल रियरिंग। अभी आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है 1.4 बिलियन अरब लोग, तो उससे ऑलमोस्ट डबल जो है कैटल है। कैटल मतलब बेसिकली हम लोग गाय भैंस इन सब की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब दूध प्रोड्यूस करने हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और भारत सबसे बड़ा देश है जो दूध और दूध के पदार्थ खाता है, जैसे पनीर, लस्सी, दही, ये सब, तो उसमें जो सिस्टम है डाइजेशन का, काऊ का, बफेलो का, उसमें मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रीन हाउसेस इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज हम लोगों के अपने डाइट पैटर्न चेंज हो चुके हैं। हम लोग अभी दूध और दूध से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, और भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है दूध का और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो एक नंबर 1 वो है। वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी जानवरों का मीट खाया जाता है, जिसके लिए उन्हें रियर किया जाता है, और उसी तरह से उसमें भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड काफी प्रोड्यूस होता है। तो नंबर 1 कारण तो ये हुआ। दूसरा जो है, जो जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली इंडिया में, आप देखोगे कि हम लोग आजकल शहर में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की तरह फूड फेंकने लग गए हैं या बचने लग गया है, और उसको हम लोग 2-3 दिन के बाद फ्रिज से निकाल के फेंक देते हैं। फूड वेस्ट जो है अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे देश में सेग्रीगेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है, जो पूजा जी काफी दिनों से फरीदाबाद में करना चाह रही हैं, और बहुत सारे पार्ट में हुआ भी है, कुछ सिटीज में हुआ है, जैसे आप लोग सब इंदौर का नाम जानते होंगे। तो इंदौर में सेग्रीगेशन जो इतने लेवल पे होता है कि प्लास्टिक के रंग और प्लास्टिक के अलग अलग जो पॉलीमर्स हैं उसके आधार पे भी सेग्रीगेशन होता है, अराउंड 25 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। फूड वेस्ट जो है उसका खाद बनाया जाता है, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको उस तरह से मैनेज किया जाता है जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्देश में बताया गया है, राइट। फूड वेस्ट जो है वो सिर्फ हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे कि शहर में जो खाया हुआ है या खाना छूट गया, बना हुआ खाना वो फेंका जाता है, उससे तो मीथेन प्रोड्यूस होता ही है। क्योंकि आप जब खाद बना रहे हो, तो जब वो आप खाद नहीं बनाते हो, जैसा फरीदाबाद में होता है या गाजियाबाद में हो रहा है या इवन ग्रेटर नोएडा में भी हो रहा है, तो वो फूड सड़ के वो मीथेन प्रोड्यूस करती है विदाउट ऑक्सीजन। तो अगेन मीथेन आ गया ग्रीन हाउस गैसेज में। दूसरा जो है, सॉलिड वेस्ट के अंदर भी कई ऑर्गेनिक तत्व होते हैं जो कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए उपयोग की जा सकती है, जैसे पत्ते। पत्ते जो है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बन सकते हैं अगर सूख जाए तो ये जो ग्रीन जितनी भी कटिंग्स आती हैं, ठीक है, तो वो शहरों में तो कंज्यूम नहीं हो पाती है, ना उनका फर्टिलाइजर बनाते हैं प्रेजेंट। लेकिन अगर उनका फर्टिलाइजर बनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन सकता है अलॉन्ग विद द काउ डंग, और जैसा भी और भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं। जैसे पराली के बारे में काफी डिस्कस किया गया है, तो आपको बता दूं कि पराली से जो मीथेन है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में निकाला जा सकता है। और जैसे भी सतत प्रयास जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस या मीथेन प्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक जो साइकिल है वो लंबा हो जाएगा कार्बन का, और उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है, जिससे हमें कोयले या किसी और फॉसिल फ्यूल को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इसका फर्क ये पड़ता है कि कार्बन फुटप्रिंट जो है ओवरऑल ह्यूमैनिटी का कम होने लगता है। तो एक ये अच्छा प्रयास है सॉलिड वेस्ट में करने के लिए, जैसे पराली है या गोबर की गैस है।
दूसरा है कि जैसा पूजा जी ने भी कहा ट्री प्लांटेशन के बारे में, अभी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो पेड़ है वो एक्चुअली जीवन का केंद्र है, वो जीवन का बेसिकली प्रतीक है। अगर आप सोचोगे पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सॉइल के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वो जब पानी होती है, बरसात होता है या कहीं भी होता है, उस पानी को जमा करके भी रखता है जमीन के अंदर। और उसके और भी बहुत सारे इकोसिस्टम है, जैसे ट्री से कनेक्टेड फंजाई सिस्टम है, जो बेसिकली एक स्कैवेंजर है और हजारों करोड़ों साल से वो स्कैवेंजर है। जैसे अब आप सोचते होगे कि जंगल में जो पेड़ मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो उसको फंजाई जो है अपने नेटवर्क से कंज्यूम करती है और उसको रिसाइकल कर देती है नेचर में। रिसाइकल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेड करना। तो बायोडिग्रेडेशन जो है वुड का और पेड़ों का, वो फंजाई सिस्टम करता है। ठीक है, तो अब आप देखना शुरू करोगे कि जब मैंने फॉसिल फ्यूल से बात शुरू की और पराली तक आया और ये अभी जंगल के पेड़ तक आया, हर सिस्टम जो है इस प्लैनेट पे मदर नेचर में कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हो कि पानी अलग है एनर्जी से, तो ऐसा नहीं है। जब आप के बदरपुर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप जानते हो उसमें कितना पानी लगता है? ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बाद में आप कोई अगर आपको मालूम हो तो ये आंसर कर सकते हैं कि अगर पर किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी में कितना पानी लगता है जनरेट करने में, लेट्स से बदरपुर प्लांट में या किसी भी कोल थर्मल पावर प्लांट में। तो ट्री प्लांटेशन पे आते हैं, तो अभी जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट आया था ब्राजील में और उसने कैटल रियरिंग के लिए अमेजन फॉरेस्ट को, जो हजारों लाखों साल से वहां टिकी हुई है और जिनको लंग बोला जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, अर्थ का, मदर अर्थ का, पूरे प्लेनेट का, उसमें काफी जो है डिफॉरेस्टेशन हुई और पेड़ काटे गए हैं। वो पेड़ जो है अब दोबारा कभी नहीं आ सकता, वो जंगल वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो लाखों साल पुराना जंगल है। उसको फिर से रीइंस्टेट करना, रिजुवनेट करना बहुत ही बड़ा काम है। तो एक जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये बेसिकली हर युग में होता रहा है, लेकिन इस बार जो है एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ह्यूमन सेंटर्ड है। क्लाइमेट चेंज एक साइकिल है जो अर्थ पे होता रहा है, लेकिन जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज हैं, जो मैंने अभी बताया सारे लोगों को कि ऐसा ऐसा है, उसके कारण एक्सेलरेट कर रही है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेलरेशन का है, तो वो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, और जिससे टेम्परेचर बढ़ रही है। तो ये मत समझिए कि केवल गर्मी होगी क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर बढ़ेगा, बल्कि इसके अंदर कई जगहों पे टेम्परेचर घटेगा भी, और बारिश जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले 2 साल से एक छिंदवाड़ा करके एरिया है मध्य प्रदेश का, जो फूड बाउल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पे सब्जियां, हर्ब्स और काफी चावल उगती हैं। और तो वहाँ पे पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि 30 दिनों की बारिश 2 दिनों में हो रही है। ये भी क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। तो उसके अंदर या तो बारिश बहुत ज्यादा होगी, या बाकी जैसे 30 दिन का बारिश 2 दिन में हो रहा है, 28 दिन पूरे सूखे पड़े रहेंगे। तो वो जो पानी 2 दिन में हुआ है, अगर मान लीजिए वो एक सर्टेन लेवल पे होता है, 120 सेंटीमीटर होता है 30 दिनों में, अगर वो 2 दिनों में हो गया तो बाढ़ आ जाएगी उस जगह में। या जो टॉप सॉइल है और सब्जियां हैं, जो फसल खड़े हैं, वो सबको बहा के ले जाएगी। तो ये एक आप समझ लीजिए कि एक इफेक्ट है कि क्लाइमेट चेंज में और क्या हो सकता है। जो मैंने कहा कि समुंदर या लैंड सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। उससे क्या होता है कि समुंदर एक बहुत बड़ा कार्बन एब्जॉर्बर है। एक सर्टेन टेम्परेचर तक वो कार्बन एब्जॉर्ब करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सब। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वाटर के, वो बढ़ जाते हैं और वो कार्बन रिलीज करना शुरू कर देता है, जो और गर्मी भी बढ़ा देगा कई जगहों पे, और कई जगहों पे ठंड ला देगी, और बहुत एक्सट्रीम ठंड। तो जैसे आपने क्लाइमेट चेंज में देखा होगा कि अभी कुछ कुछ असर जो है हमें दिखने लग गए हैं, चाहे वो ग्रीस हो, कैलिफोर्निया हो, ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट हो, वहां जंगल में आग लग रही है अपने आप, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे जो रहता था
वो 30 से 35 डिग्री रहता था। अब अचानक किसी किसी दिनों में आप चेक करके देख लेना, पिछले साल जो है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, सिडनी का तो मुझे नहीं मालूम, मेलबर्न में ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री पहुंच गई थी टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर हम कहते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर आप एक्सट्रीम्स पे जाने लग जाएं, मतलब इक्वेटर से दूर जाने लग जाएं अर्थ के, तो आपका जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि जो 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेट्स से दिल्ली में है, तो हमें जो 40 डिग्री की गर्मी फील हो रही है ऑस्ट्रेलिया में या कैलिफोर्निया में, वो अलग तरीके से होगी। जैसे 40 डिग्री अगर लद्दाख में होता है तो वहां इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि स्किन बर्न हो जाएगा। तो वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जो है ना वो मैटर करती है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं। इसमें ये एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे सोल्यूशन के बारे में बोल रहा था, ट्री प्लांटेशन के अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, जैसे कोयला है, बाकी चीजें हैं, गैस है, उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, NO, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड N2O, ये सब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो पेड़ जो है उस गैस को एब्जॉर्ब करती है, उसको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जो सब जानते होंगे प्रोसेस कि पत्ते कैसे बनाते हैं अपने फूड। और दूसरा ये है कि अगर एनर्जी सेक्टर में अगर हम डिसेंट्रलाइज सोलर यूज करना शुरू करें तो भारत जितना इंपोर्ट करता है पेट्रोल गैस, उसका आधा भी नहीं करना पड़ेगा। और हजारों करोड़ जो है हमारा जो इंपोर्ट बिल है, हमारा इंपोर्ट बिल बेसिकली ऑयल और गैस में 60% के करीब है। मतलब अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 60 रुपया जो है सिर्फ तेल और गैस खरीदने में खर्च हो जाता है, क्योंकि भारत में पहली बात तेल और गैस है नहीं ज्यादा, दूसरी बात हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया की 1/6 ऑलमोस्ट है। तो ये फर्क जो पैदा करता है, तो इसके कारण भी हमारा देश जो है वो गरीब है, क्योंकि हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी जो इंपोर्टर होते हैं, नेट एनर्जी इंपोर्टर्स दुनिया में आप देखोगे वो जो है गरीब कंट्रियां होती हैं। ठीक है, अब जापान जैसी कंट्री छोड़ दो आप, जो कि खुद ही मैन्युफैक्चर करके उस इंपोर्ट के बिल को कम कर रही हैं एक्सपोर्ट करके, तो वो अलग कहानी है। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे अफ्रीका जैसे है, इंडिया है या साउथ एशिया है, वो लोग नेट एनर्जी इंपोर्टर्स हैं। तो वो गरीबी जो एनर्जी की गरीबी है वो मॉनेटरी गरीबी में भी चेंज हो जाती है। अब आप देखोगे कि जैसे कि हमारे गाँव में भी लकड़ियां जलाते हैं, गोबर का कंडा जलाते हैं, तो ये सब जो है बेसिकली महंगा पड़ता है उनको, क्योंकि वो अगर जंगल कट रहे हैं या अगर वो लकड़ी खरीद रहा है, तो अगर आप उसको सिलेंडर के गैस से कंपेयर करोगे, इवन कि अब 1000 रुपये हो गया सिलेंडर, तब भी उनको महंगा पड़ता है, क्योंकि उनको जाने के लिए समय चाहिए होता है, वो इकट्ठा करने के लिए, और फिर जलने में भी समय लगते है लकड़ी में। और एक बार आपने लकड़ी में आग लगा दी तो आप दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो जब एनर्जी पॉवर्टी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक मेजर फैक्टर है भारत जैसे गरीब देश के लिए, जो असली गरीबी को आगे बढ़ाता है, एनर्जी पॉवर्टी। सो एनर्जी पॉवर्टी इक्वल्स मॉनेटरी पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉवर्टी। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी 5 लोगों के घर में 5 लोग घर में रहते हैं और वो एक सर्टेन एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेट्स से हम लोग एक फ्रिज, 4 पंखे, बिजली, टीवी, ये सब करते हैं, तो आप ये देखोगे कि 5 किलोवाट अगर हम सोलर लगाएं तो हम लोगों के बिजली के बिल में बहुत फर्क हो जाएगा। एक मैंने फरीदाबाद में देखा हुआ है, क्योंकि फरीदाबाद में एक रूल है कि 500 स्क्वायर मीटर के बड़े प्लॉट्स पे आपको सोलर लगाना ही लगाना है, कम से कम 5 किलोवाट। तो एक मेरे सीनियर हैं जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उन्होंने 10 किलोवाट लगाया हुआ है और उनके 3 फ्लोर हैं। तो 2 फ्लोर पे वो खुद रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, और 2 फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखा है। उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर में दिखाया कि कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अप्रैल के महीने में। अभी पिछले साल अप्रैल के महीने में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि उनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ रहा है, और क्योंकि वो किराएदार से मार्केट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं उनसे, तो उनको नेट जो है फायदा हो रहा है सोलर प्रोड्यूस करने से। तो मतलब वो बिजली चला भी रहे हैं 3-4 फ्लोर पे, और उनको इनकम आ रही है सोलर से। इजंट दिस ग्रेट? दूसरा, अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 किलोवाट सोलर अगर हर दिन हम लोग कंज्यूम करते हैं, 10 किलोवाट मतलब
जो पैनल्स लगे हैं उसकी कैपेसिटी 10 किलोवाट है कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए हम उसमें 15% भी मानते हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है, तो 1.5 किलोवाट आवर एक घंटे में प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 1.5 से 12 घंटे भी, तो आपको मिलेगा करीब 18 किलोवाट, यानी कि 18 यूनिट जो एनर्जी जो है आपकी बच रही है। 18 इंटू आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी रेट है आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर 7 रुपए भी है तो 18 इंटू 7, उतना पैसे आपके हर दिन बच रहे हैं कम से कम। और अगर आपने बैटरी लगा दी तो आप सोलर जो है, मतलब हमारा सूर्य है जो पूरी धरती चलाता है, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपको इतनी बैटरी रखनी पड़ेगी अपने छत पे कि आप पूरे दिन का सारा काम कर सकते हो उससे, एक्सेप्ट फॉर एसी। एसी के लिए कम से कम 5 किलोवाट का ओवरऑल होना चाहिए, क्योंकि जो अभी उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग करंट, वो 6 एम्पियर या 8 एम्पियर के ऊपर होता है डिपेंडिंग ऑन द एसी। वो जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा चाहिए होती है, नहीं तो वो भी चल सकती है 5 किलोवाट के ऊपर अगर आपका सोलर लगा तो। ठीक है, तो ये जो है मेरे कुछ पॉइंट्स थे। 12:37 हो गए हैं, 40 में मुझे खत्म करना था। एक जो पॉइंट्स सुनीता जी ने कही थी वह पॉपुलेशन। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों की पहले की यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत जो है अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो चुका है। तो हम लोगों को अब इसके बारे में रियली सोचना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है। लेकिन आपको डिटेल बता दूं कि इसमें जो यूपी और बिहार है और इस तरह के जो बड़े प्रदेश हैं जैसे झारखंड, ओके, और वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत है, इन 4-5 बड़े स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो पॉपुलेशन एक्चुअली बाकी छोटे स्टेट्स में घटना शुरू हो गई है। जैसे पंजाब, जैसे उत्तराखंड, जैसे केरल, सबसे ज्यादा केरल। तो वहां पे जो हुआ है वो सिर्फ माइग्रेशन के कारण नहीं हुआ है, लो बर्थ रेट के कारण हुआ है। और लो बर्थ रेट के कारण केरला का अब यह हाल है कि एल्डरली पॉपुलेशन जापान की तरह ज्यादा हो गई है और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। ये पहला इफेक्ट है पॉपुलेशन का। दूसरा जो बात कर चुके हैं हम लोग वेस्ट का, वेस्ट में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि वेस्ट सिर्फ वो लैंडफिल वाला वेस्ट नहीं है, वो लैंडफिल में हमारा वेस्ट जा रहा है, यानी कि फूड वेस्ट जो पका हुआ है। और दूसरी बात, जो स्टोरेज नहीं होने के कारण हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में कच्चा पक्का फूड फेंका जाता है। या जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी नासिक में प्याज फेंक दिया गया, कभी आलू फेंक दिए गए, तो वो आप बहुत सारा रिसोर्स जनरेट करके इस्तेमाल करते हो, राइट। अगर वो आप सड़क पे फेंक रहे हो तो बेसिकली वो सारा जो रिसोर्स है वो बर्बाद हो गया और कार्बन फिर से जनरेट हो गया, क्योंकि वो सड़ेगा भी, वो आलू जो आपने फेंका है, मतलब किसानों ने फेंका है सड़क पे। तो स्टोरेज सिस्टम नहीं होने के कारण ये होता है। अगर इंडिया में स्टोरेज सिस्टम अच्छा होता तो सब्जियों के दाम भी स्टेबलाइज्ड रहते और सबको सब्जी आराम से मिल जाती, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और फल भी मिल जाता। हर समय आपको सेब जो है महंगा दिखेगा क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज से आता है, आपके पास आता है। लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम जो है हर स्टेट में हो तो वो हर समय जमा किया जा सकता है और उसका दाम भी नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर एक स्टॉक में कोई चीज रहती है तो उसका दाम कंट्रोल रहता है हमेशा। अगर आप अमेरिका जाओगे 2 साल के बाद भी, आज गए और 2 साल के बाद भी गए, तो आपको सेम दाम में सेम क्वांटिटी ऑफ टमाटर मिलेगा, सेम दाम में सेम क्वांटिटी ऑफ सेब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का स्टोरेज सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो इतना बढ़िया उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये जो करीब 10 साल पहले या 5 साल पहले रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 40% जो हम लोग उगाते हैं, मतलब हमारे किसान उगाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है वेरियस कारणों से। लेकिन स्पेसिफिक कारण सप्लाई चेन है, 40%। और एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारी इतनी जनता भूखे मर रही है। हमारी 30 करोड़ जनता भारत में दिन का शायद एक टाइम का खाना नहीं खा पाती है, उनको मिलते ही नहीं है, वो खरीद नहीं पाते। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि इतना सारा भोजन हम फेंक रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को इस तरह से समझना है कि आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। आप ये सोचोगे कि सेब हिमाचल में फेंका गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फरीदाबाद में या कहीं पे भी आप खरीदने जाओगे सेब, उसी सेब को, तो वो 100 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो जाएगा इसी के कारण। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप खरीद पा रहे हो,
दूसरे के पास है नहीं है तो वो नहीं खरीद पा रहा, बस यही डिफरेंस है। लेकिन भारत का पूरे तौर पे अगर पूरे भारत का देखा जाए तो कंप्लीट नुकसान हो रहा है, हर तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे मेरे ख्याल से। एक मिनट प्रणय एक चीज और, थोड़ा सा प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि आप उस पर बहुत अच्छा काम करें, बहुत 2 या 3 मिनट में वो और एक बार समझा दीजिए, क्योंकि लोगों को उस चीज में थोड़ा सा भी क्वेश्चन तो मेरे पास भी बहुत हैं, बट आप थोड़ा सा अपने लेवल पे देखिए, प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट वेस्ट में क्या जो है कि प्लास्टिक एक नया रॉ मटेरियल है, और ये आप समझ लो कि 40 साल पहले बहुत मतलब अच्छी तरह से आना शुरू हुआ, पैकेजिंग में हर तरह में यूज हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्वालिटी है। ठीक है, ये हल्का है, मजबूत है, हाँ, नॉन डिग्रेडेबल है, तो उसके कारण ये काफी उपयोग होना शुरू हो गया हर इंडस्ट्री में। अब क्या है कि जिस एज में हम लोग रह रहे हैं उसको एक्चुअली हम लोग प्लास्टिक एज भी बोल सकते हैं। आप किसी भी चीज पे हाथ रख दो, उसके अंदर प्लास्टिक कंपोनेंट है, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो। अब इस चीज को ह्यूमैनिटी मतलब सारी मानवता अभी मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ऐसा है कि वो डिग्रेडेबल नहीं है। जो उसका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वो उसका वीकर पॉइंट भी है प्लास्टिक का। तो अब इसमें क्या है कि इसमें 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल, 2 तरीके से। पहला तरीका है कि वो पॉलीमर खुद ही रिसाइक्लेबल है, यानी कि पॉलीथाइलिन जो आप बैग्स देखते होंगे, पीईटी बॉटल जिसमें आप पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, और कई होते हैं इंडस्ट्रियल प्लास्टिक जो कि थर्मोसेट प्लास्टिक बोला जाता है। वो रिसाइकल नहीं हो सकते, एक बार बन गए तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, उससे आप जला के उसको आप एनर्जी बना सकते हो, क्योंकि वो पेट्रोल से ही बनता है। और दूसरी भ्रांति ये है कि प्लास्टिक सिंथेटिक है, वैसा सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया था, और पेट्रोल जो है आप देखोगे तो हजारों साल से दबे हुए पेड़ और एनिमल जो मरते हैं उनके वेस्ट से बनता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक है और ये बायोडिग्रेड भी होगा। बस यही है कि हम लोग 40 साल में बना के सोचते हैं कि अभी हो जाए बायोडिग्रेड, लेकिन मदर नेचर जो है उसको ऑलरेडी शुरू कर रही है उस माइक्रोब्स के थ्रू खाना उसको। अब आप देखोगे कई जगह पे न्यूज आ रही है कि सर्टेन माइक्रोब्स पाया गया है जो पेट खा रही है, कुछ पॉलीथाइलिन खा रही है। तो ये होगा, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमारी मदर नेचर वही तय करती है कि कैसे होना चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो बायोडिग्रेड करती हैं प्लास्टिक को, और उनमें से हमारी भी एक कंपनी है, लेकिन इस चीज के लिए हम लोगों को रिसाइकलिंग के लिए खासकर मेहनत करनी होगी। इनको फर्स्ट लेवल पे क्या अपने घर पे सेग्रीगेट करना होगा। जो हम लोग जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेवल पे सेग्रीगेशन होता है उससे बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पेपर एक तरफ जो ड्राई वेस्ट है, और दूसरी तरफ जो है वेट वेस्ट, यानी कि खाना या इस टाइप के ऑर्गेनिक वेस्ट को। ये अगर पहली शुरुआत है तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एज अ नेशन, क्योंकि वेस्ट सेग्रीगेशन जो है मेन पॉइंट है, सिर्फ सेग्रीगेशन के लिए नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के रूल्स में भी 15 बार लिखा गया है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। एट सोर्स मतलब भारत के लोग, इंडियन सिटीजन, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, रिसाइकलिंग के बहुत सारे तरीके हैं प्लास्टिक के। एक है कि पैलेट्स बनाना, दूसरा है कुछ उसके उपयोगी फर्दर उसका जो लाइफ है वो बढ़ा देना। जैसे कई जगह आप देखते होंगे कि बेंच बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब में उतना प्लास्टिक नहीं लग सकता। हमारी कंट्री में ऑलरेडी प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा कमी है, तो बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जैसे एग्रीकल्चर मल्च फिल्म बनाना, नर्सरी बैग्स बनाना, गार्बेज बैग्स बनाना। ठीक है, और जो नॉन फूड एप्लीकेशन है उसमें रिसाइकल प्लास्टिक ऑलरेडी यूज हो रही है। तो उस चीज को अगर आप इंडस्ट्री को हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है सेग्रीगेशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वहीं से शुरू होती है, और उस जो बहुत लोग बोलते हैं ना वैल्यू है कूड़े में, अगर आप मिक्स कर दोगे वैल्यू 0 होती है एक्चुअली उसकी। क्योंकि वेट वेस्ट जो है, जो खाना है, वो पेपर, प्लास्टिक सबको दूषित कर देता है। उसको रिसाइकल करना बहुत आसान नहीं रहता, पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसमें केमिकल लगाने पड़ते हैं। इसीलिए एक सिंपल एक्ट सेग्रीगेशन का ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा फ्यूचर में। थैंक यू प्रणय। सोनू आगे आप कंटिन्यू करो जैसे भी। Thank you, sir, for this much valuable information. And definitely, I learned a new word today: energy poverty. Yes.
सो बेसिकली सर आज के सेशन में लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ, बट मे बी सम मिसकम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी का यूजेज। तो लोगों ने मुझे जो मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप पे भेजे हैं कुछ क्वेश्चंस। एक जो क्वेश्चन है हमारे सेशन के बीच के एक लाइन से आया है कि सोलर एनर्जी जो है वो काफी बेनिफिशियल है आज के टाइम के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव है आफ्टर इंस्टॉलेशन, बट उसका जो इंस्टॉलेशन एंड परचेज चार्जेस हैं वो काफी हाई है, everyone cannot afford it, so how to opt for that? मेरा एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि आप कार खरीदते हो फिर ईएमआई भरते हो, राइट? तो कार भी तो आप अपफ्रंट खरीद रहे हो ना, मतलब बैंक आपके लिए दे रहा Exactly. है लेकिन आपको ईएमआई देना पड़ता है। अभी कई बैंक्स जो हैं सोलर के लिए आपको लोन देना शुरू कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर कैपिटल कॉस्ट आपका लेट्स से 80,000 रुपए पर किलोवाट लग रहा है, ठीक है, अगर आप मेजर करना शुरू करोगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है पर यूनिट आज 7 रुपए दे रहे हो, तो दिल्ली मेट्रो ने कैलकुलेट किया था, ये करीब 10 साल पहले की बात है, कि इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो कितना होगा। जो फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, उन लोगों ने कैलकुलेट किया था, उस समय जो दिल्ली में यूनिट रेट था वो 5 रुपए था। आफ्टर 25 या 20 ईयर्स द रेट वुड बी 25 रुपीज पर यूनिट, 5 गुना बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि सोलर पैनल का लाइफ टाइम 20 साल है, लेट्स से 20 साल के बाद 25 रुपए दे रहे हो और अभी 5 रुपए दे रहे हो। अगर आप सोलर आज लगाओगे कैपिटल कॉस्ट डाल के, ठीक है, या लोन लेके, आपका एक्चुअली प्रोडक्शन रेट 5 ही रुपए रहेगा 25 साल के बाद भी। तो आप मान लीजिए कि 1,000 यूनिट, लेट्स से बहुत कम बोल रहा हूं, कि एक साल में यूज करते हो अपने घर में, 1,000 इंटू 20 रुपए, 20,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए। Exactly. आपके हर दिन इतनी, हर साल इतने बचेंगे। तो आप बचत देखो अपनी। दूसरी बात ये भी है, वार्निंग ये भी है, जो कोयला है हमारे देश का वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दूसरी बात, उतनी क्वांटिटी में नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है, कि कोयला भी नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आप जानते होंगे कि कई कंपनियां कोयला इंपोर्ट करती हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, हमारे कंट्री के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए नहीं, पावर प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए आप देखोगे दाम बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो इम्पोर्टेड कोल से बनाते हैं वो। तो ये दोनों आंसर। और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यस मैम, और क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में भी हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज हम बात करते हैं टू पुट अ कर्ब ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन ने भी जैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स निकाले हुए हैं, गवर्नमेंट भी रेगुलर बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, बट जो कॉमन पब्लिक है, जैसे हम बात करते हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स या फिर क्लाइमेट चेंज से होने जिन चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है उन्हें सोर्स पे ही रोका जाए, लेकिन जो ये सारी पॉलिसीज हैं, जो ये सारी अवेयरनेस है वो सोर्स पे ही नहीं पहुंच पाती। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पाएगा आने वाले टाइम में कि हम क्लाइमेट चेंज से फाइट कर पाए? अब जैसे सोनू सोनू जैसे ही लड़के हैं, या बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग हैं, पहली बात तो कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी चाहिए। गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, वो एडवर्टाइज भी करती है कई पेपर्स में, अपने वेबसाइट पे भी, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं देखते जाके गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या हो रहा है। या कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग वही पेपर पढ़ते हों, और आजकल की जनरेशन तो न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ती है। तो उसमें फ़ायदा ये भी है कि यू कैन जस्ट सर्च एंड गो एंड सर्च कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या हो सकता है। तो इसमें जो है, जो मैंने देखा है सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये साइंटिफिक इंडस्ट्री है, तो कम्युनिकेशन सिंपल नहीं है। चाहे वो हिंदी में नहीं है, चाहे वो तमिल में नहीं है, चाहे पंजाबी में नहीं है, इंग्लिश में भी है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स के लैंग्वेज में है, जैसे द वर्ड सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ, जो सब लोग नहीं बोल पाते हैं। तो अब आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो आप देखोगे निरंतरता आते हैं इसका। अब निरंतरता कितने लोग समझते हैं सस्टेनेबिलिटी में? तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को जब तक हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको बार बार नहीं बोलेंगे, तब तक ये स्प्रेड नहीं होगा। अब आप देखो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो अलग अलग चीजें बेचती हैं, अब कोई पान गुटखा बेच रहा है, कोई च्युइंगम बेच रहा है, कोई चीनी से भरा हुआ बिस्किट बेच रहा है, वो लोग कितनी बार ऐड करते हैं। अभी आईपीएल आ रहा है, आप एक पान गुटखा का ऐड देखते हो, हर विकेट पे और हर ओवर के बाद उसका ऐड आता है।
तो इसमें तो जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वही इस चीज को फैला सकते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ। सरकार कितना अटेम्प्ट कर लेगी, कितना ऐड दे लेगी। उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अमिताभ बच्चन से करवाया भी था, लेकिन कितने लोगों ने ये समझा कि कूड़ा जो है सेग्रीगेट करना चाहिए, इवन जब अमिताभ बच्चन बोल रहा था। तो ये इसी तरह से पॉसिबल है कि जैसे हम लोग अभी सेमिनार कर रहे हैं, फिर उसी तरह सोनू अगले दिन करे अपने फाइनेंशियल सीए सर्किट में, उसी तरह पूजा जी और करवाएं, और जो यहाँ पे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो खुद भी काफी जानते हैं इस चीज के बारे में, वो अपनी अपनी कम्युनिटी में करें। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भी जैसे हम लोगों ने ये जो इको चक्र अभियान ट्रस्ट बनाया है, इसको एक जगह पे लाने के लिए किया, क्योंकि पूरे भारत में ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत एनजीओ और गवर्नमेंट और कंपनियां हैं, लेकिन एक जगह पर एकत्रित नहीं है। अब जो नेगेटिव जो करते हैं, जैसे कोयला है या पेट्रोल है, वो लोग हर एक कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑयल जो बेच रहा है उनका एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी है। तो बीपीसीएल, आईपीसीएल सब उसके अंदर रहते हैं, रिलायंस। हम लोग को भी जो भी क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग सॉलिड वेस्ट पे कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट पे कर रहे हैं, सबको एक जगह पे आना पड़ेगा और कम्युनिकेशन एक ही होनी चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में, नहीं तो ये बात नहीं फैल पाएगी चाहे हम लोग कितना भी बोल लें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, और आज भी इसलिए ये वाला रखा गया कि हम टेक्निकल वर्ड ना लेके बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यही अनाउंस भी करना चाहती हूँ कि हमारी नेक्स्ट जो वेबिनार है वो भी बहुत जल्दी, शायद मई 13 का हमने रखा है, उसका प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर ही है। तो हमारी कोशिश कि हम जल्दी जल्दी इस तरीके से करवाते रहें। और दूसरी बात, अगर हम 1 से 5 को भी कर दे, 5 को मत करो, एक अपने आप इंडिविजुअल को ही हम लोग अपने को सुधार लेना, तो आई थिंक कुछ तो चेंज आएगा, कहीं कहीं कुछ तो। मतलब हमें खुद इतना कर लें कि रात को जब हम सोए तो हम मदर नेचर को ये बोल के सोए कि आज जो मैंने किया अपने लेवल पे, जो कर सकती थी वो मैंने किया। क्योंकि मैं ये जानती हूँ, मैं इतने सालों से कर रही हूँ काम। बिल्कुल सही कह रहे हो कि गवर्नमेंट से, पॉलिटिशियन से नहीं, जब तक सब मिलके एक रेवोल्यूशन नहीं आएगी ना, जैसे 47 की, जो मैं तो वही कहती हूँ बार बार कि जो क्रांति हम लाए थे और हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसी तरह की क्रांति हमें अपने इसके लिए चाहिए, जिससे कि हम लोग इकट्ठे हो सके, पॉलिटिशियंस पर दबाव बना सके, ब्यूरोक्रेसी पे अपना दबाव बना सके। नहीं, हमें तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब तो कुछ हो जाएगा। नहीं तो हम अपना अपना तो कर ही रहे हैं जितना कर सकते हैं, और मिलके हम जो एनजीओ हैं, और जब हम इको चक्रा, इको सवेरा और ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि चेंजेस लाने की और कोशिश करें। इसी के सोनू, नेक्स्ट कंटिन्यू हाँ जी, इसी के गौर अंकल का एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन आया हुआ है, वो ले लो। अंकल ने बहुत गौर लंबा सा। अंकल, गौर हाँ। सर ने कमेंट बॉक्स में काफी अच्छा बोला हुआ है। जैसे इसमें सर ने बताया कि गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी, गवर्नमेंट की एजेंसीज वर्ल्ड वाइड सारा करती हैं प्रयास, उसके बाद भी 11% रिसाइकलेबल प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो पाता है, और बाकी का जो बैलेंस है वो या तो लैंडफिल्स में चला जाता है या ओशंस में चला जाता है। अब एज पर रिपोर्ट्स आज के टाइम में जो हम पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक है, हमारे पीने वाले पानी में भी। तो बिल्कुल जैसा सही। गौर सर ने बोला कि हमें जो प्लास्टिक है वो अपने सोर्स पे ही, और हम लोगों को ठानना होगा कि हम उसे बिल्कुल अवॉइड करें, रिजेक्ट करें, और हम प्लास्टिक को नो बोलें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल ठीक। और ले लो मैम क्वेश्चन, अभी है टाइम एक हमारे पास। हाँ। एक क्वेश्चन है वसुंधरा पांडे का। व्हाट रोल कैन कबाड़ी वालाज प्ले इन मैनेजिंग रिसाइकलेबल वेस्ट? कैन environmental organizations work with them to support them? यस, प्रणय, आप दोगे इसका, आप दे दो आंसर। एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में हम लोग को सपोर्ट नहीं चाहिए, उनके साथ काम करना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि कोई रिसाइकलिंग कर रही है प्लास्टिक की, या कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, कबाड़ी वाला को अपने सप्लाई चेन में करना आवश्यक किया गया है कि उनको भी आप इंक्लूड करो इस चेन में, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कलेक्शन जो है सबसे बड़ा हेडेक होता है, और कबाड़ी वाला जो है इस चीज को पूरा करता है। और उसके अंदर भी जो, जैसे आपने देखा होगा, गरीब लोग कलेक्ट करते रहते हैं, उनका रोल है, और उनके इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये मैंडेटरी किया गया है। इसीलिए आप बिल्कुल उनके साथ काम कर सकते हो, आप उनके साथ एग्रीमेंट करो लीगल, और तब काम करो। ऐसे आप इनफॉर्मली आप काम मत करो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को दिखाना भी पड़ेगा। और जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, या जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं या पैकेजिंग कर रहे हैं, उनको आजकल अनिवार्य कर दिया गया है, स्पेशली मेट्रोज में पहले साल में, कि वो
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्टर करें और अपने उनका जो है ओवरऑल ईयर का जो प्लास्टिक कंजम्पशन है उसकी ऑडिटिंग की जाएगी। दूसरा जो गौर सर ने पूछा है, बोला है, वो ये है कि इंस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, नहीं, अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि गवर्नमेंट बेस्ट एफर्ट्स कर रही है, मैं बोल रहा हूँ जो वेस्ट है वो म्यूनिसिपैलिटी का सब्जेक्ट है, स्टेट का भी नहीं है। और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एक भी एफर्ट नहीं कर रही है, सिवाय 2-4 नाम जो आपने सुना कि इंदौर है, वारंगल है, इन सब के अलावा, या पुणे आधा अधूरा कर रहा है। कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा है वो, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ काम करते हैं। और क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को, तो यही हो रहा है। जबकि एक जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सेल है, मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक सेल बना हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो स्पेसिफिकली म्यूनिसिपैलिटी के साथ काम करती है। लेकिन फिर भी ये लोग इतने पावरफुल हो गए हैं आजकल कि ये लोग खुद अपने मन से काम करते हैं, और जो इनको गवर्नमेंट मैंडेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नहीं करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि बेस्ट एफर्ट कुछ भी नहीं है, वो एफर्ट ही नहीं करते हैं। सर, मैं आई वांट टू इंटरवीन हियर एट दिस पॉइंट। हाँ Sir, I have met Mr. Aditya Singh, who was the MCA Municipal Commissioner at Indore about 4 years back over dinner, and have detailed discussion. The biggest thing was there, what is missing in our all system, when he took up this job and he was asked by, at that time, Member Parliament, Madam Mahajan, to make it number 1. He said, I have to stay on this position for a minimum period of 3 years. That is, and this assurance was given to him. After that, he says biomining machine were costly, 2 crore. Then we took 50 machine from Bombay company for what you saw at on rent, 50,000 rupees rent and all that thing. And he installed about 120 machine in the total city, old and new Indore. And after six months, the heaps of garbage which are there are all around Delhi and NCR started diminishing, and he was able to manage it within a period of 2.5 years, zero. Now in Indore, after that, 250 decentralization waste processing plant are working. That is the way. When we think of centralization, that is the biggest mistake our government given contract to somebody like Eco Green and all that thing. It is not possible unless and until we adopt the approach of decentralize it and do it at mohalla level, गली लेवल। अंकल दैट वो तो मस्ट है, अगर वो हो जाएगा तो प्रॉब्लम काफी चीज सॉल्व हो सकती है। बट वही हमने तो बहुत कोशिश की, डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जरूरी है सर। नहीं, वही मैं बोल रहा था, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, लेकिन जो हमारी म्युनिसिपैलिटी है उस लेवल तक नहीं आ पाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, करप्शन में डूबी हुई है और वो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। और इंदौर का जो आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही अच्छा है और वही वैसे ही करना चाहिए। मुझे सिर्फ यही समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी सारी म्युनिसिपैलिटी इंदौर को कॉपी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आपने जब उनके साथ मुलाकात की है तो आपने उनको बताया होगा आपको, उन्होंने, कि वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं एक्चुअली। यस सर, यस यस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ, अगर आप देखो फरीदाबाद का मेरे पास डाटा है, average tenure of a corporation commissioner is less than 6 months in last 15 years, sir. Less than 6 months. There are cases 15 20 दिन में आदमी हो जाता है। That has to be done, sir. अंकल कोई नहीं, वो प्रॉब्लम तो हम लोग अब अपने लेवल पे हमने स्टार्ट किया, हम देखते हैं कितना लेके जाते हैं इसको आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर में, हमने इंदौर में ये किया था कि 3 साल के बाद जो आदमी ऑफिशियल है वो अपनी ACR खुद लिखेगा, एंड दैट विल बी रिव्यूड आउटसाइड द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कि जब मैं आया था वेस्ट क्या थी, अब मैं 3 साल हो गए, क्या है, क्या स्थिति है, क्या नहीं, ऑल दिस थिंग लाइक दैट। सो दैट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। अनफॉर्चुनेट, जैसे आपने कहा, हमारा जो सिस्टम है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। सुनीता नोट अबाउट एवरीथिंग, कि हमारे तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैंने लाइव दिया है कि ये पोल्यूट कर रहे हैं, पानी नहर का कर रहे हैं, सब कुछ दिया, एग्जांपल दिया। वो ट्रैक्टर वाला मुझे बोलता, बुड्ढे तू मेरे ट्रैक्टर के नीचे आके मरेगा। और मुझे मैडम कनोडिया जो रीजनल ऑफिसर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो जवाब देती हैं कि ये देखो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी, आप सर वहाँ पुलिस के पास जाइए, हमारा काम नहीं है। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है सर हमारे, क्या कर सकते हैं।
देखिए वो तो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, हम लोग ये कर सकते हैं कि जो इंदौर वाला आपने बताया वो ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब में, पूरा सिस्टम पूरा अपग्रेड। अब उस चीज को हम लोग अगर फैलाना शुरू कर दें, और उससे क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट वाले हैं ये लोग अखबारों और यूट्यूब ये सब काफी उस पर ध्यान देते हैं कि मेरा नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। उस चीज को अगर हम फैला कर करना शुरू कर दें, हर जगह प्रसारित करना शुरू कर दें, तो उन लोगों पे प्रेशर जरूर बनेगा कि ऐसा होता है, और उन लोगों के पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और हमारे को गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिए। तो ये सब बिल्कुल ही बेकार बात है। इंदौर में मिला है एक दो सवेरा ने अपनी ये कोशिश की हुई है जो हम नॉन वालेबल को पहुंचा रहे हैं वहां पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। तो हम तो चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उसको तो हम करते रहे, गवर्नमेंट को दिखेगा, सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इंडिविजुअल लेवल पे और एनजीओ के लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो अपना हम कंटिन्यू करें, उसको ना रोके। और सोनू, अब मेरे को लगता है कि आप कंक्लूजन कर सकते हो, बाकी और कोई अच्छा क्वेश्चन है तो ले लो। I have a suggestion on पूजा, एक बात बताऊं मैं आपको, पता है सर ऐसा है कि फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में मेरा कंसंट्रेशन रहता है। 3 सोसाइटी, बिगेस्ट सोसाइटी ओमेक्स हाइट, अदर इज समर पाम एंड थर्ड वन इज प्यूश हाइट। हमने इन 3 सोसाइटी को जहां पर मिला करके 7,000 से ऊपर फ्लैट्स हैं, इतने आदमी रहते होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 and 4 यू कैन गेट। हमने इन सोसाइटी को जीरो वेस्ट सोसाइटी बना दिया और वो चले कुछ दिन तक। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज बिकॉज ऑफ द सेटिंग एनवायरमेंट एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ओवर अथॉरिटीज, वो दोबारा से कुछ ना कुछ एक आदमी गलती करता है, उस पर कोई एनफोर्समेंट नहीं होती, वो दूसरा तीसरा चौथा फिर हो जाता है। ये हमने 3 दफा 4 दफा कोशिश करी है, कामयाब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए जो हमें इन एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो एमसीएफ हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, कोई भी हो, पुलिस हो, हमें जब सहयोग नहीं मिलता है उस दिशा में क्या करना चाहिए? मेरा एक बहुत ही सिंपल सजेशन है। आप सब जानते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। तो आपने जो काम बहुत अच्छा काम करवाया है उसको कंटिन्यू, एक मुथ्थू जो है उसने भी एक पूरे शहर में करवाया था वारंगल में, लेकिन जब वो लौट के आ गए 1 साल के बाद तो धीरे धीरे वो सिस्टम खत्म होने लगा। तो एक तो किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए उसका कुछ 4, 5, 6 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यंग लोगों को इन्वॉल्व करना, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो लोग जितना प्रेशर बना सकते हैं अपनी फैमिली पे, सोसाइटी पे, मुझे नहीं लगता कि कोई और बना सकता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली एग्रीड। तीसरा ये है कि जो आप अच्छा काम कर रहे हो आप उसको सीधे सोशल मीडिया में अपलोड करना शुरू कर दो, ताकि वो जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है उस चीज को दबा नहीं पाए, क्योंकि उनका भी अपना नेक्सस है, पॉलिटिशियन और जो बड़े वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और म्युनिसिपैलिटी का। तो उस चीज को अगर आप मतलब बिना लड़े हुए करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका यही है कि अपना यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर दो कि भैया हमने ये काम किया 7,000 फ्लैटों के लिए, और बार बार उस चीज को आगे बढ़ाते रहो, तो लोग आपको दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सब लोग वॉच कर रहे हैं इसको। इनको सबको टैग कर दो, जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल तक टैग कर दो आप। I want to add something here which Mr. Pranay has been telling us. On this area, we are all getting stuck with the local administration, especially the municipality, panchayat jo hai, corporation hai. So here we have in Hyderabad, our community has taken an initiative to propagate the source segregation to other communities, and we invited the municipal people also, and they appreciated that. Now we have been interacting with the commissioners on a regular basis, giving them the solutions for source segregation, who can collect the dry waste, how their workload will be reduced if we do source segregation and dry waste is collected by recyclers. And also we are giving solutions in terms of composting system and biogas systems. So it depends upon a lot of patience. It is not 1 or 2 years or 1 or 2 attempts, many years of patience. Sometimes the commissioner gets transferred every 6 months. Absolutely. So also we need to catch hold of our corporators. Who are our corporators? We go to their house, we go to them, tell them to, our mayor was staying in our community and they were not source segregating. So our ladies went and put interaction. So it is a constant interaction at the grassroots level by us for involving the municipal administration and authorities, and keep on giving them solutions, keep on giving support. Sometimes they want to propagate or kind of build the awareness or source segregation. We should go with them, and then we should do it in other communities. So this is what I want to add. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Here I would like to add 2 things.
मे बी आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन दो चीज मैंने जरूर जो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं बताऊंगा। पहला, कई बार हम लोग देखते हैं, आप सभी ने भी देखा कि ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में या वैसे ऑन द कॉल चैट्स हमारे पास थाउजेंड्स लोग होते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज करने वाले हैं, तो हमारे पास 500 लोग रह जाते हैं। 200 लोग कहते हैं कि हाँ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चलेंगे। और जिस दिन हम आते हैं उस काम को करने, 10 लोग हमारे पीछे खड़े होते हैं। तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट साइड से भी इश्यूज हैं, बट हमें अपने लेवल पे भी देखना होगा। पीपल से समथिंग डिफरेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कहीं भी, और इन रियलिटी में वो डिफरेंट होते हैं। सेकेंड थिंग जो था कि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे करेगी। समटाइम्स दे हैव रिसोर्सेज बट नॉट द पावर्स, समटाइम्स दे हैव पावर बट नॉट द रिसोर्सेज, और समटाइम्स पावर भी होती है, रिसोर्सेज भी होती है, माइंडसेट डिफरेंट होता है। सो हम लोग अपने लेवल पे जरूर अपने आप को सुधार सकते हैं, जैसे बिल्कुल अभी सही। प्रणय सर ने बोला, इस टाइप के सेशंस करके यूथ जो है हमारे साथ जुड़े। अगर आप लोग आज संडे मॉर्निंग में भी अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं, आगे कभी हम सेशन करें, आप दोबारा आए, आप लोग इस चीज को और आगे स्प्रेड करें, सब लोगों को, ऐसे हम साथ आएंगे। दिस इज कम्युनिटी बिल्डिंग। हम अपने लेवल पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक धीरे शोभा धीरे जी का सब प्रॉब्लम आ रहा है, सोनू बार बार लिख रही हैं। मैं उनको यही हाँ बताना जी। चाहूंगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डाली है उनके घर के पास की। उसमें ये है कि आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो म्यूनिसपैलिटी को और पुलिस को भी, जहां अगर वो कूड़ा फेंक रहे हैं तो। ये यही है कि एक जो चीज सबसे ज्यादा हम लोगों को करनी है कि जो लॉज आते हैं उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं इंडस्ट्री को भी काफी बोलता हूँ, तो वो लोग हवाई जहाज से मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन वो 20 मिनट का पेपर जो है, 4 पेपर, वो नहीं पढ़ते हैं कभी भी डिटेल में, और ना डिस्कस करते हैं अपने टीम के साथ। ये अभी हम सोसाइटी में हमारे मोबाइल आने के कारण ना ये भारी कमी हो गई है। पहले को लोगों को देखोगे ना तो आप हर चीज जानते थे, क्योंकि लॉज जो पढ़ते थे उसको क्योंकि वो पढ़ते थे इसलिए याद रहता था और उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। अभी हम लोग हर चीज बहुत तेजी से करना चाहते हैं, कुछ है नहीं, सब कुछ मोबाइल पे है, वो गायब हो जाता है, तो उससे पॉसिबल नहीं है। और इसका उल्टा भी है कि अगर कोई चीज हम जानते हैं तो व्हाट्सएप पे आप डालते रहो, इतना डालो कि वो आपको जान जाए कि उस चीज के साथ। जैसे मुझे लोग ग्रीन मैन या मेरे बैचमेट्स लोग सस्टेनेबिलिटी पर्सन बोलते हैं, इतना आप बोलो कि आप ब्रांडेड हो जाओ। तो उस जैसे पूजा जी जो है, जो मैंने उनके साथ काफी दिनों से काम करना शुरू किया, और अब उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि उन्होंने एनजीओ फॉर्म कर लिया और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ बात करती हैं। तो मैंने उनको देखा है कि उनका जो परसिवरेंस है, परसिस्टेंस है, वो बहुत ही अच्छा रहा है इतने साल तक, डिस्पाइट कि जो हमारी सोसाइटी है उतना एनकरेज नहीं करती इन चीजों को। और उनको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा, मैं जानता हूँ, घर पे भी, एग्जैक्टली। बाहर भी, सब जगह। तो ये परसिवरेंस रहना बहुत जरूरी है। खासकर मैं यंगर जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम ना समझे। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे पोस्ट में कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कुछ लोग पर्सनल लेवल पे भी कर रहे हैं, जैसे पेट बॉटल को रीयूज कर रहे हैं, जो कि जैसे हमारी सभ्यता देखी जाए, भारतीय सभ्यता, तो हम लोग बहुत ही एक सस्टेनेबल सोसाइटी थे। अभी ये सब जो नई नई चीजें आई हैं, प्रोसेस्ड फूड और ये वो, तो सिर्फ प्रोसेस्ड फूड हम नहीं खा रहे हैं, गलत चीज। इसमें जितनी पैकेजिंग आती है वो आप देखोगे सिंगल यूज पैकेजिंग होती है, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जो पूजा जी अभी जिसको फ्यूल बनवा रही हैं करके। तो अगर इस तरह पे हम लोग ध्यान दें कि जैसे रीयूज कर रहे हैं बॉटल को, और हम लोग आप देखोगे पॉलिथीन, एक बढ़िया पॉलिथीन भी लाते हैं तो उसको बेड के नीचे दबा के रख देते हैं कि बाद में यूज करेंगे। लेकिन जो आजकल जो सब्जी मार्केट में आ रही है, और वो बैंड है, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कलर के पॉलिथीन है वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। ये फूड एप्लीकेशन में यूज नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रांसपेरेंट वर्जिन प्लास्टिक यूज हो सकता है। 120 माइक्रोन का, इस साल से 120 माइक्रोन का हो गया है वो। या बेस्ट ये है कि आप अपना थैला ले जाओ, जो हम लोग पहले करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू, ये रूपा जी और उन्होंने रेज एंड किया, बस फटाफट उनका लेके फिर हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में पूछ लीजिए रूपा जी और रचिता, क्योंकि ये लोग ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन किया तो मुझे है कि ये लोग जो इनके माइंड में एक बार क्वेरीज इनकी भी हो जाए। हाँ रूपा जी। हाँ, मुझे ये सुनना था कि सुन रही है आवाज? आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, आ रही है, हाँ जी। मैं ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ हम सेग्रीगेट करके कूड़ा देते तो हैं, लेकिन वो सारा मिक्स करके ले जाता है। उसके लिए हम बोल के भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देन व्हाट टू डू? कैसे कैसे करें इस चीज को?
मैं इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो हमारा गार्बेज पिकर लोग है ना, इनका माइंडसेट उस तरीके से बन चुका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गंद में से हम हाथ निकालें, उनको कहते हैं कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। हमारी कोशिश है कि बार बार इनको समझाना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो 15-20 दिन के सेशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें अलग मिलेगा तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि ये चीज मैं भी देख रही हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको गंदगी में रहने की आदत है, वो कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, मिक्स है हम अपना मिक्स अलग कर लेंगे। अगर कोई अलग देता भी है तो वो भी उसको कर देते हैं मिक्स। बट ये फ्लो है, इसको करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम इनको रोज, जैसे कहते हैं ना, टक 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 करते रहो इनके ऊपर, शायद चेंज आ जाए कुछ। नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन तो है ही, जो हम लोग अपने एरिया में दे रहे हैं कि आप अपना जो ऐसा है जो फेंक देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, उसको आप अपने घर में रखो। और हमारी जो वैन आ रही है, अभी तो मंथली आ रही है, आगे हमारे है कि शायद 15 डेज में हम लोग वीकली भी करने वाले हैं। कल ही मेरी बात हुई है इस चीज के ऊपर। तो हम लोग वो तो एटलीस्ट उनको दे देंगे जो नॉन वैल्यूएबल और जो जिसको उन्होंने लैंडफिल में जाके फेंकना है, आप अपने घर में स्टोर करिए उसको। और आप लोग तो कर ही रहे हैं, मैं आपका तो आता भी है, और बाकी जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं अभी इसमें, तो वो लोग भी कर सकते हैं। और हम सबसे कांटेक्ट करके हम एक इसको बनाना चाहते हैं कि एक रेगुलर ये बन जाए, मंथली से ही वीकली पर आ जाए। पूजा जी, एक्चुअली इको चक्र अभियान के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा एज ए ट्रस्टी कि जैसे गौर साहब हैं, उन्होंने किया, उनके पूरे प्रोसेस को हम लोग अगर डिस्क्राइब करें, उनके फोटोज डालें, और उनको हम लोग और इस टाइप की जो काम किए जा रहे हैं उसको बढ़ावा दें, बिल्कुल कि बिल्कुल लोग ध्यान यही दें। करना है अभी। ठीक है। और इसी दौरान जैसे मुथु ने कहा कि जो वेस्ट कलेक्टर है, उसको अगर इकोनॉमिक फायदा नहीं दिखेगा ना, तो वो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल उसको इकोनॉमी, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है या आप उससे कमा सकते हो, उनको चेन में एक्चुअली अगर आप लाना पड़ेगा। पूरा नहीं, स्टडी वो किया हुआ कोशिश है, हम लोग कर रहे हैं, वो कोशिश है हमारी, उनकी एक कंटिन्यू है। लीडर होती है जो उनको एक पर्टिकुलर सैलरी देती है, उसके अलावा उनके उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है। बिल्कुल। बट इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ पे है दिक्कत, क्योंकि ये माफिया है और काफी जी कुछ जी इनसे जुड़े हुए हैं, तो मुश्किल काम है। बट कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि शायद हम कर पाए, सक्सेस हो पाए इस चीज पे। लेकिन हम सेग्रीगेशन एट द सोर्स अपने लेवल पे तो करते रहे, ये बिल्कुल मेरा सबसे बिल्कुल कहना है। बिल्कुल। सोनू, इसको हम कर सकते हैं वाइंड अप। एक बार मंगला मैम की ब्लेसिंग्स हम ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंगला मैम हमें सुन रही है तो हमें बस ब्लेस कर दीजिए। Mangalam ma'am may have left the meeting. ओके, अब मृणालिनी दीदी आए हुए हैं। No. अच्छा, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई नहीं। मुथु से Okay. आप आप बोल दीजिए, मुथु को बोलने के लिए बोल दीजिए। मुथु जी बोल देंगे। मुथु जी आप बोल दीजिए, खुद भी हमें गाइड कर दीजिए, आप बायोगैस पे बहुत अच्छा काम कर। Thank you, Pranay ji and Eco Savera. I don't have much to say after listening to the session. I was thinking I am an environmentalist, but now I just think I am a mentalist. I should have done so many other things. Thanks to the eye-opening inputs given by Pranay ji. And from my experience, limited experience, I can tell you, whatever questions we have about people not changing, workers not changing, we have at least 13, 14 case studies from different parts of South India, from small gram panchayats to very big corporations where people have changed, workers have changed. Believe me, it's possible. That's all I want to say. Thank you so much. Keep positivity. होगा। So before formally concluding the session, I would like to tell two things to our audience and everyone. First, if you are doing something good, something unique and which can bring the transformation, आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, so as a community we can spread the word. इको सवेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इको सवेरा सिर्फ मेरा नहीं है, पूजा मैम का नहीं है, या किसी एक दो मेंबर का नहीं है, आप सबका है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सबसे इको सवेरा है। बिल्कुल सही। आप सब अपने जो वर्क करते हैं उसके फोटोज वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी कैन पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि ज्यादा हमारा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे होगा, सो वी कैन रेज द वॉइस एट अ बेटर लेवल। आप कोई भी काम करते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें बताइए, वी विल पोस्ट इट ऑन दी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अवेलेबल है। सेकेंड इसी में थिंग, मैं कहूंगी, एक मिनट सुनो। अभी एक बच्ची ने 12th क्लास की, जो गुड़गांव डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट है, उसने हमारे साथ मिलके इस पे रिसर्च वर्क पेपर तैयार करके हमारी साइट पे पब्लिश किए हैं। उसने इन पे किया था, काउस जो पॉलिथीन खाती हैं तो उससे कितना इम्पैक्ट आता है, उसका रिसर्च पेपर हमारी साइट पे है, यदि आप जाके देखेंगे तो। इसलिए आप बच्चे जो हैं, यूथ हैं, जो भी करना चाहे, बिल्कुल सही कहा है सोनू ने,
आप प्लीज आइए आगे। हाँ सोनू कंटिन्यू। सेकेंड थिंग, इको सवेरा है जो हमारा एनजीओ, ये ड्राई वेस्ट पिकअप ड्राइव करता है। आप अपना घर का नॉन वैल्यूएबल ड्राई वेस्ट जो है उसे अपने घर पे स्टोर कीजिए, एक कॉर्नर या फिर कोई भी एक स्पेस ले लीजिए जहाँ पे आप उसे कलेक्ट करें। हम मंथली बेसिस पे अपनी वैन्स भेजते हैं और उस नॉन वैल्यूएबल वेस्ट को पिक करते हैं। इससे आपका जो वो नॉन वैल्यूएबल वेस्ट है वो लैंडफिल्स में भी नहीं जाएगा और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकेगा। सो आप सब लोग आगे आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, उसे अपने घर पे स्टोर कीजिए और उसकी रिसाइकलिंग के लिए और बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सबका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अलग अलग जगह से और यूएसए से भी प्रेरणा ने बताया किसी ने ज्वाइन किया हुआ, तो मेरा दिल से सबको थैंक यू करती हूँ। और ये हम सेशंस करते रहेंगे, क्योंकि मेरी अभी एक दो जगह और बात चल रही है, उन्होंने यस कर दिया हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो हम बहुत जल्दी इसी, यदि आप चाहते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप ग्रुप ये बना रहेगा, अदरवाइज हम ऑन टाइम दोबारा इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। एज जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे हम करेंगे, क्योंकि हमारा भी मानना है कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना है तो उस पर केवल काम की चीज जाए, अदरवाइज लोग बोर होकर उसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर हमने छोड़ दिया, यदि आप इसमें से लेफ्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको फिर ऑन टाइम जब हमारा होगा तो हम इसको दोबारा क्रिएट कर लेंगे। और यदि रखना चाहते हैं तो हम इसको रख भी सकते हैं, अच्छा, जिससे कि हम कुछ अच्छा चीज होगी तो हम इस पे हम डाल सकेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। सबको नमस्कार, मुझे सुनने के लिए। और जैसा आप देख रहे होंगे सब लोग कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेस्ट मैनेजमेंट में या क्लाइमेट चेंज के अंदर, दे आर लेड बाय वुमेन। अब पूजा जी हैं, मंगलम मैम हैं, मेरी पत्नी और पार्टनर खुद हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हेड हैं, वही लीड करती है, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ यहाँ बोलता हूँ। मैंने पहले ही बोला, नारी शक्ति प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि हाँ, प्रकृति की जो पीड़ा है वो नारी शक्ति बहुत आसानी से समझ सकती है। और मैं सच बताऊं ये क्यों मेरे को आया, क्योंकि 3-4 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे को दिल को बहुत बुरा लगा। किसी ने मुझे ये बोला कि आपने प्रकृति को उनके साथ क्यों जोड़ा है, देवी दुर्गा के साथ। तो मेरे को लगा लोगों को अभी यही नॉलेज नहीं है कि जो प्रकृति है वो ही दुर्गा है, या वो ही एक मदर शक्ति जिसको हम कहते हैं, कि उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया, सृष्टि की क्रिएटर है, नरेचर है, डिस्ट्रॉयर ही वही है। तो हम इस चीज को अलग कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लोगों तक ये बात समझानी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ कि आध्यात्मिकता से, रिलीजियसली इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमारे देश में जो एल्डर जनरेशन है उनको इस चीज से समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, लंगर्स हो रहे हैं, और हम और भी सही, मैं बोलना नहीं चाहूंगी यहाँ पे, वहां पे हम एक तरफ पुण्य का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नेचर को रुला रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा है भंडारा जब करते हैं तो फिर आप जाओगे बाद में तो सारी जगह प्लेट और गिलास बिखरे रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं इसका करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। So, on behalf of Eco Savera and Eco Chakra Abhiyan, it gives me immense pleasure to thank each and every one of you present here. I would like to also thank our honorable speakers, Mr. Pranay Kumar, Muthu Kumar Swamiji, Pooja ma'am, and Mangalam ma'am, who, despite their busy schedules, spared time and shared this much valuable information with all of us. Also, a special note of appreciation to all our dear audience for being a keen listener throughout. As I already said, आप संडे मॉर्निंग में सुबह उठे हैं और हमारा सेशन ज्वाइन किया है, सो उसके लिए अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू. With this, I conclude today's session. Thank you, everyone. Stay connected. EcoSavera is available on all the social media platforms as well. @EcoSavera. थैंक यू सो मच, थैंक यू। I request, can everyone please turn on their cameras for a group photograph? Can everyone please turn on their camera for a minute for a group photograph?